बेचारी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ती थी। ये देखना, ये देख के जाना। बाल्टी भर के प्रिपरेशन करोगे तो मक्के वाला स्कोर आएगा। अदरवाइज जय माता दी। So what's up guys, welcome back to my channel. Hope you guys are all doing absolutely fine. So आज हमारे साथ कुछ गेस्ट बैठे हैं। इनका नाम है मिस ईशा शर्मा, मिस्टर आशुतोष शर्मा। मेरे को काफ़ी सालों से जानता हूँ, वो तकरीबन 18 साल हो गए होंगे आप लोगों को जानते हुए। कितनी एज है तेरी? नहीं 18 साल से, हाँ मैं इनको 18 साल से जानता हूँ। हम भाई बहन है इसलिए। सो ये भी जीआरई देखे इधर आए थे और वो भी जीआरई देखे यहाँ यूएसए आए थे। सो मैंने सोचा कि आप लोगों की कुछ हेल्प कर दी जाए, इनसे कुछ जानकारी ले कि कैसे जीआरई देना है और जीआरई के लिए कैसे प्रिपेयर करना है टॉफल के लिए। तो हाँ, तो आप पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ईशा आप। ओके, हाय एवरीवन, माय नेम इज और अपना साथ में जीआरई और टॉफल स्कोर। मैं इसकी बड़ी सिस्टर हूँ एंड yeah, I came here in fall 2018 to do my masters in computer science. So yeah, here I am. My graduation is done and I'm working now as a software engineer. आपका जीआरई का स्कोर? It's confidential. I don't think we should reveal that. But it was good, but yeah, let's just keep it that way. हाँ, आप बोल। हाँ, तो मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। Do I really need an introduction? Anyways, you can हाँ, just इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप विजय देवरकोंडा को जानती हो। you should probably just go see my YouTube channel. If you're preparing for JRE TOEFL, you should probably see my channel. But anyways, my JRE was 318, almost 320 you can say, and TOEFL was 120 or 120. Yo. Cool boy. So, पहला क्वेश्चन, हाँ जी. how to prepare for GRE and TOEFL? You wanna go first? Sure. इनने तो खुशी से स्कोर बताया तो let him go first. See, here's the thing. GRE में दो parts होते हैं, right? One is quantitative. The other one is basically English. You can just call it verbal and reasonings and all, but it's basically English, right? For verbal part, the English part, it's all about the preparation you have done for a long time. इस चीज़ को आप बस बहुत कम दिनों में प्रिपेयर नहीं कर सकते. This takes time. It takes effort since start. जब आप first standard में, second standard में आप जो सीखते हुए आ रहे हैं, आप जो read कर रहे हैं, the content you read, the books you read, the quality of those things that you read. ऐसा नहीं आप TikTok पे जाके English देख रहे हैं या आपके कोई किसी दोस्त ने blog लिखा उसको पढ़ रहे हैं. It should be a good quality. शशि थरूर को देखो, है ना? वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा वैसे, but still quality over quantity, but it takes time. I mean basically yeah, you can't just keep mugging. हाँ, एक महीने पहले से that okay words and उनकी meanings याद करना start कर दे. You will need to be fluent. Yeah. And gradually learn words. If you think 3 months में हो जाएगा तो ऐसा नहीं. It's not just about definition and it's also about usage कि आपको कब वो usage करने में उसकी क्या feel आती है when you read something. You know, like it's an art basically. It's like अगर आप हिंदी लिख रहे हैं और आप एक लेटर पढ़ रहे हैं, एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, can you express the feeling that you are thinking in your mind? That's the whole point. For quantitative, it's all about the 10th standard maths. अगर आपका 10th standard में maths अच्छा है, so you will get through it easy, and it can be learned fast comparative to verbal reasoning. And one year should be enough. But it's all about practice. जितने questions कर सकते हो करो, and you should be good. I don't think there's anything left, but yeah, as he said, कुछ तो होगा ऐड करने के लिए. Yeah, I mean you can't just keep mugging. Try to read books, watch series. That is what I did. I started watching series. What I told was on the perspective क्योंकि मेरा maths और English already अच्छे थे. Now tell them अगर maths नहीं आता तो क्या करना है. So अगर आपको maths भी आपका थोड़ा weak रहा है, so again you need to just start like you just need to practice. So like because he was good, maybe उतनी practice नहीं होती होगी. I on the other hand I practiced a lot. So like I solved every other book like say Princeton, Manhattan. So yeah, just sit and practice, and it's not a difficult math. You just need to be fast and you need to have practice. So just practice. That's it. और आंसर चेक करो सही प्रैक्टिस करके बस छोड़ दिया कुछ नहीं लिखा. practice until you succeed. Yeah. I mean you don't need to be scared. So yeah,
you can just practice on you don't need वो like तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आता है तो अच्छा है, you don't have to be scared. No, अगर but- नहीं आता तो you should be No, but if you scared. practice सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच बुक्स और कौन सी स्टडी मटेरियल से पढ़े और कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़े? आप लोगों ने किससे प्रिपेयर करा था? इसके लिए I would say उसके दो जवाब हैं. एक है उसकी दो चीजें ये भी है that he gave GRE I think 12 years ago. हाँ. नहीं, sorry, 7 years ago. 7 years He gave 7 years ago. I gave 5 years ago. 2013. No. I gave it in 2013. You gave it 2 years. Maths कमजोर है, कोई बात नहीं. ये भी कट करना, सॉरी, नहीं, 13 से ये 10 कट साल नहीं बड़ा है ना, होना मैं 5 साल बड़ी, मैं उस ये हिसाब कट से नहीं- कैलकुलेट ये कट नहीं करती होना हूँ, चाहिए। ये कट होगा. नहीं. तो I practiced on my own. Books from which I started, I think सबसे basic is Barron's, जो everyone refers first. Balance है. So you need to give उसका पहला test to see without preparing where you stand, and then आपकी औकात क्या समझ में आ रहा हाँ, है? पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितना टाइम चाहिए और कितनी मेहनत चाहिए, तो उस हिसाब से डेट लो. एंड सबसे पहले बैलेंस सॉल्व करो. आई थिंक इट्स सबसे इजी है वो, एंड इट्स गुड टू स्टार्ट, टू गेट अ स्टार्ट, हेड स्टार्ट. उसको करने के बाद देन यू कैन गो हेड. व्हेन इट कम्स टू maths, I would say solve Barron's, then go for Manhattan, go for Princeton. And when it's for verbal, Barron's, and then I forgot, पता नहीं और कोई सी book थी which is good for English. I don't remember the name, I'm sorry. But yeah, 2 books for English, and then again English where you can't mug. तो वो 2 books practice के लिए is good for reading comprehensions and all of that stuff. But again, अगर English अच्छी है तो you would be good. So you need to focus उस पार्ट पे where you think you're weak, whether it's maths or English. For me it was maths, जो अब तक evident हो चुका है. So I practiced more on that side. So that is why I remember the books which all I saw. But yeah, and also there was this coaching हमारे city में, and I had a few friends जो लोग वहाँ पे जाते थे, तो मैंने उनकी books ले ली थी वहाँ की, and मैंने वो भी practice की थी. So yeah, these are the few books. तो first of course Barron's GRE. Just go to your school's library or college library, वहाँ पे रखी हुई रहेगी. And उसको उठाओ and give the first test and at least understand the basic syllabus कि क्या आने वाला है, क्या expected चीज़ हैं, किस तरह के topics आते हैं, किस तरह के chapters होते हैं. उसके बाद वो एक बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, फर्स्ट लेवल. जैसे उसको क्रॉस किया उसका, मैं जस्ट गूगल GRE क्वेश्चंस, GRE टेस्ट, और बस देते जाओ जो गूगल में मिल रहा है पहले नंबर से तीसरे चौथे, और जब तक आपका टेस्ट हो रहा है. टेक पेपर्स, गिव एग्जाम्स, टेक पेपर्स, गिव एग्जाम्स एंड अंडरस्टैंड कि आप कहाँ भी स्टैंड करते हो, कहाँ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. तो आपकी प्रेफर्ड बुक आपने किससे पढ़ा था? प्रेफर्ड बुक, जस्ट गूगल GRE क्वेश्चंस एंड आंसर. GRE देने के लिए कुछ स्टडी मटेरियल होगा आपके पास? कोई स्टडी मटेरियल. कुछ study material? बट अगेन डोंट फॉलो दिस. Follow ये यहीं पे 2 approach and you can हाँ. see कि like Whatever works for you. whatever works for हर you, इंसान की एक अलग तरीका होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है बुक से खुद पढ़ना. यू शुड गो फॉर कोचिंग. आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगा किसी के साथ पढ़ो या किसी के साथ कहीं कोचिंग पे जाओ. जिनको अच्छे से आता है यू कैन जस्ट गो रैंडमली. आपको समझ में आ रहा है कि आपके वीक पॉइंट्स है, उसको समझो. अगर मैथ्स वीक पॉइंट है तो गो फॉर लाइक इवन यू कैन पिक अप आर.डी. शर्मा ऑफ 10th मैथमेटिक्स एंड दैट And I शुड think बी तब ग्रेट उतने डील. apps नहीं थे, but हाँ, when I अब तो gave, है. yeah, there were a lot of apps, so you can just use like Barron's के flash cards और Kaplan के flash cards, so that also Yeah. makes it easy. There are a lot of free resources also. मतलब ज़रूरी नहीं है Barron's के plans. I think they are paid and sometimes very expensive for a few people. But वही इसलिए I mean you can just Google and there's so many resources. बहुत सारी चीज़ें हैं online. बात सिर्फ यही, शुरू करो. सिर्फ वीडियोस मत देखो कि कैसे प्रिपेयर करना है. एक्चुअली प्रिपेयर करना शुरू करो. ये देखना, ये हाँ, देख के जाना. नहीं, ये वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं. बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मुझे नहीं लगता उसका कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हमने मिस करी होगी. यू शुड जस्ट गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या हमें कोचिंग्स में जाना चाहिए, GRE इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए पढ़ने के लिए? Okay, I'll go first. मुझे वापस से ये लगता है that it depends. If you have some, मतलब कोई है अगर जिसके साथ आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई फ्रेंड है जो GRE दे रहा है and you think that उसकी इंग्लिश अच्छी है या उसका मैथ्स अच्छा है, you can do a group study, you can do that. कोई एल्डर है घर में, सिबलिंग वगैरह who can help, तो वो तो टोटली डिपेंड्स कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आप कितने प्रिपेयर हो एंड कितनी प्रिपरेशन आपको लगता है आपको चाहिए. सो वेयर यू स्टैंड, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू मेक डिसीजंस. लाइक आई न्यू दैट आई हैड हेल्प एंड मैं खुद से पढ़ सकती हूँ, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया. एंड अगेन क्योंकि मैथ एंड इंग्लिश अगेन इट टेक्स टाइम, बट इट्स नॉट लाइक वेरी टफ. 10th तक का मैथ्स आता है तो यू कैन डू. सो या इट डिपेंड्स लाइक या योर रिसोर्सेज एंड वेयर यू स्टैंड एंड
how do you like to study? You like to study alone? I know कि बहुत लोग ऐसे जिनको सिर्फ अकेले पढ़ना पसंद है, जिनको किसी के साथ रिविजन करना भी पसंद नहीं। तो अगर अकेले पढ़ना पसंद है तो वो ग्रुप में, if you want to join coaching classes, तो it all depends. Material वही अभी material सब जगह, you have apps, online courses. So whatever suits best for you, just go for it. I don't think anyone can advise you because सब different है, सबका तरीका different है. जैसे हम दोनों की approach different थी, तो according to your And the only thing I can add is कि time पे भी depend करता है कि कितना time है. तो अगर बहुत टाइम है तो what I can suggest कि सही तरीका बिल्कुल वो होना चाहिए कि start at least 1.5 year before. 6 months खुद से कोशिश करो कैसा हो रहा है, and then give tests again. समझो आपका स्कोर कितना इम्प्रूव हुआ है, आपके टॉपिक्स कितने, अंडरस्टैंडिंग कितनी इम्प्रूव हुई है. अगर काफ़ी हुई है, यू कैन सी अ ड्रामेटिक चेंज, मतलब कि यू आर स्टडिंग नाइस एंड यू हैव द डिसिप्लिन कि आप खुद से पढ़ सकते हैं. तो जस्ट यूज़ दैट एंड खुद से पढ़ो. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं खुद से, वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है खुद से, देन गो फॉर हेल्प विद द कोचिंग. लाइक एट द एंड द रिजल्ट शुड बी देयर. आपको मार्क्स लाने हैं, अब वो कैसे भी लेके आओ, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड सबके तरीके अलग अलग होंगे. ऑफ कोर्स ये बात है. Okay, so next question is how to prepare for vocabulary, how to improve English. Yeah, we If you almost have covered something it, to add, but yeah. very specifically मैंने जैसा कि बताया कि ये चीज़ें बहुत शुरू से सीखी जाती हैं. It takes time because it's a language. आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बस कभी पढ़ना शुरू कर दो, आप 1 साल में सीख जाएंगे. सीख सकते हैं अगर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत मेहनत कर रहे हैं तो. मैंने कुछ सुना है वेब सीरीज, इंग्लिश मूवीज क्या बोलते हैं. That is what I did. मैंने देखना स्टार्ट की थी. I mean I was already watching, but then उस टाइम पे भी even though I was studying, मैंने उस देखना बंद नहीं किया. उससे actually you get fluency, you understand words कैसे यूज करना है सेंटेंस में, वो दिमाग में I think फटाफट फिट होता है. And अगर फिर यहाँ आना है, here you need to communicate in English, so you get that fluency, you start understanding the accent way before. So I think that is a good idea to do because even if TOEFL के listening section में the accent is like यहाँ का accent, Yeah. so it helps to understand कि at least you'll get the gist. Even if you miss some words, you'll get the gist of what is going on. यहाँ क्या बोल रहा है. Okay, so the next question is which exam to give, TOEFL or IELTS? It depends. हर क्वेश्चन में डिपेंड्स आएगा. पर हाँ, just to give the pros and cons, TOEFL is more widely known and बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं ज़्यादातर TOEFL यूज़ करते हैं. एक्सेप्ट हो जाता है. हाँ, एक्सेप्ट हो जाता है. एंड IELTS भी बहुत सारे कॉलेजेस यूज़ करते हैं, पर कुछ गिने चुने होते हैं जो सिर्फ IELTS पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल यूरोपियन एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, दे डिपेंड ऑन ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज जहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाएं एंड जस्ट सी कि कहाँ पर IELTS ज़्यादा एक्सेप्ट होती है, कहाँ पर TOEFL, एंड सी कि आपको क्या देने में ज़्यादा एडवांटेज है. लाइक इट्स अबाउट 80-20 रूल. 80% ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो एक्सेप्ट कर रही हैं, यू शुड जस्ट गिव दैट एग्जाम. By the way, you should also have a shortlisted university. You should have shortlisted universities before giving these exams, क्योंकि आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है कि किन यूनिवर्सिटीज़ को इस कोर्स Apply भेजना करना है. है. पोस्ट क्या करना है, आपके पास एक नहीं नोट क्वेश्चन भी पूछने के. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कंसल्टेंट करना चाहिए. I'll omit this question. Consultants is basically for preparation and submissions, right? Submission That is process. again like depends. If you think you can't make your own LOs, if you don't know LOR and SOP, it's like let. This is what I think. बहुत सारे प्रोसेस में एक बहुत इजी तरीका होता है, एक थोड़ा सा टफ तरीका होता है. इजी तरीके में प्रॉब्लम, मतलब अच्छी बात यह है कि बहुत इजी होता है. ऑफ कोर्स आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, आप कुछ गलत नहीं करेंगे, आपको श्योर रहता है. बट द प्रॉब्लम इज कि आप वो चीज़ समझ नहीं पाते, आप किसी और को उस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएंगे, और यू हैवंट एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस. ये आपकी लाइफ में एक बार होगा, और उस एक बार के जो प्रिपरेशन है वो आप खुद करेंगे तो एक यादें रहेंगी. जस्ट लाइक फॉर मेमोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग. Yeah. ऑल्सो आप जो डिसीजंस लेंगे बहुत कैलकुलेटेड लेंगे, आप किसी के बोलने पे नहीं लेंगे वो डिसीजंस. आई थिंक जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनका द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट रखते हैं एंड दे आर लाइक कि हाँ तुम्हारा ये स्कोर है, यहाँ अप्लाई कर दो, क्योंकि उनको याद है पिछली बार में से कि इस जगह अप्लाई किया था. तो वो वही बात है कि अगर आप एक बस सीधा सीधा रास्ता लेंगे तो आप कभी उन हिडन जेम्स को नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि आप खुद एक्सप्लोर कर सकते थे, या आपको फिर रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने ये चीज़ें पहले रिसर्च नहीं की. ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं पर कंसल्टेंट्स को पता नहीं होता है. लाइक CSULB wasn't a well known university जब मैं यहाँ पे आया था. उस समय मोस्टली वही NCSU या सनी न्यूयॉर्क, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे. एंड देन आई स्टार्टेड कमिंग टू CSULB एंड देन आई पोस्टेड इट ऑन माय YouTube चैनल एंड देन इट गॉट सम रिकॉग्निशन दैट ओके CSULBs भी कुछ, मतलब CSUs भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी फेमस है एंड यू कैन हैव फन एंड हैव a very inexpensive version of education. So
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है योर प्रिफर्ड प्लानिंग और टाइम टेबल क्या था आप लोगों का एग्जाम देने के पहले? आपका शेड्यूल, आपका टाइम टेबल, कब मतलब कब उठना, कब पढ़ना एंड Okay, I had a little bit of timetable. मतलब मैं ये नहीं बोलूँ मेरा proper timetable था, नहीं था particular timetable नहीं था, but I heard this from my friends जो coaching जाते थे that you need to read words या vocabulary के words in the morning so that it stays like revision kind of. तो वो मैं करती थी. I used to morning में उठते से I used to read all the words once जो मैंने cover किए पिछले दिन में या till now, वो सब मैं एक बार read करती थी. And when it came to math, मैं वो रात को करना पसंद करती थी जब सब सो गए एंड शांति एंड आई वुड जस्ट प्लग इन माई ईयरफोन्स. मुझे वैसे पसंद था म्यूजिक सुन के मैथ्स करना बिकॉज अगेन आई डोंट लव मैथ्स दैट मच. तो ताकि मैं बोर नहीं हूँ और मैं करूँ आई वुड जस्ट पुट इन म्यूजिक एंड कीप ऑन सॉल्विंग अंटिल लाइक 3 or 4. सो दैट वाज माय टाइम टेबल, अगर उसको टाइम टेबल बोलेंगे. या ये बोले इतनी मेहनत करी है कि कभी कभी जब लाइट चल जाती तो थैंक गॉड वो दिन नहीं आया जिंदगी में. इट वाज ऑल गुड बट जरूरत पड़ती तो करते वो भी. हाँ, तो आपका शेड्यूल और टाइम टेबल प्लानिंग? मेरा स्केड्यूल ऐसा था कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट बस मैं उस समय बुक्स बहुत रीड करता था, फिक्शन नॉन फिक्शन नॉवेल सारी. एंड देन मैथ्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस था, दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज्ड टू गिव टेस्ट एंड देखता था कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है. लाइक इफ माई स्कोर टुडे इज लाइक 320 देन नेक्स्ट डे इट शुड बी 325 या समथिंग, या एटलीस्ट इट शुड बी इन दैट विंडो. अबाउट वोकेबलरीज कुछ लाइक ऐसा कुछ था कि 1000 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते थे जीआरई के, देयर इज अ लिस्ट ऑफ देम इन पैरिस. 800 और उसका एक ऑडियो था, किसी ने एक ऑडियो बनाया था, मैंने भी एक ऑडियो बनाया उसके बाद में. And I just used to like put earphones on और जब जिम जाता था तब वो लगा के कान में and then I'm doing my cardio and exercise पूरी complete करके घर आते आते 5-6 लिस्ट एक पूरा A to Z complete हो जाता था. and बस रोज रोज सुनना. डोंट मतलब ये आई थिंक इट्स अ गुड तरीका कि आप सोचो मत इतना कि सब याद हो रहा है नहीं हो रहा है, बस पढ़ो उसका मीनिंग देखो, पढ़ो उसका मीनिंग देखो, जस्ट गो थ्रू देम कम्प्लीटली पूरे दिन. अगले दिन वापस शुरू से आखिर तक लेके जाओ, फिर एक टाइम आएगा जब आपको वो बिल्कुल समझ में आने लग जाएंगे कि हाँ ये इस वर्ड का मीनिंग है. एंड बेस्ट थिंग इज कि इफ यू कैन मेक एन एग्जांपल ऑफ योर ओन इजी एग्जांपल, तो उस वर्ड के साथ इफ यू कैन एसोसिएट एन एग्जांपल तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा. तो इफ यू देन अगेन रीड एवरी डे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा इफ यू हैव योर ओन एग्जांपल. या लोग वर्ड्स बना लेते हैं लाइक इंग्लिश का हिंदी में उसका क्या कुछ फनी तरीके से यू नो जस्ट राइट इट डाउन. अगर उससे दिमाग में कुछ आ रहा है तो जस्ट राइट इट डाउन तो एकदम से क्लिक हो जाएगा. सो कुछ टाइम टेबल आप लोग सजेस्ट करेंगे? whatever works for you. बस पढ़ो, जब टाइम मिले पढ़ो, जब पढ़ सकते हो, जितना स्कोर चाहिए उतना. So the next question is in which month or year to give GRE or TOEFL? Year means मतलब college first year, second year, third year colleges के. So your score is valid 4 years तो again it's your choice. नहीं, I think वो स्कोर वैलिड रहता है, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रीसेंट स्कोर मांगती है. लाइक योर GRE शुड बी एटलीस्ट 1 year old, ऐसा कुछ होता है. नॉट एटलीस्ट, एट मैक्स, सॉरी, इट शुड बी एट मैक्स 1 year old. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का रूल होता है. ऑल्दो GRE स्कोर 5 years तक वैलिड होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे डोंट एडमिट बेस्ड ऑन द 5 years, दे विल नॉट टेक इट. तो कौन से सीजन में मतलब और मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल के होते हैं ना? हाँ, मोस्टली लाइक व्हेन यू आर गिविंग इट यू शुड हैव लाइक 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री. आपके पास 3 years भी हो अगर और कोई कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है, तो I think the best way is कि अपने last year में whenever you have the last year give it at that time. But not last semester. I mean, I would say Not 7th last semester, semester. Yeah, like if you have 4 I years mean, it depends, category. right? अगर उनको fall में जाना है या Yeah, so spring I में जाना came है. in fall, no, but still it was pretty late. I mean, I gave my exam in October first week, and I think I could have given it earlier, but still that was okay because CSE उसकी early or priority deadlines are like November 30th. So some universities start taking applications around November, December. So if you're planning to come in fall, the deadlines are November, December, early deadlines, and then January, February. So it's better if you give around September or October by max. So like get done with your GRE and TOEFL by October, so that September. I would say September, so that you have time to prepare your LORs and SOPs and shortlist the universities and all of that stuff. कुछ colleges You don't need to panic. You can take your visa dates and admit आ जाए उसके बाद. So there are a lot of processes. ऐसा नहीं कि just exam दे दिया and हो गया. So give it early, as soon as possible. But ideally, I think you should like on. ये bloopers. Sorry, नहीं कुछ नहीं, I'm just like fumbling.
तो ideally you should target for fall. The reason is कि mostly Indian colleges में you complete your education by March, April, मतलब उस समय खत्म होता है, और fall में you start your education which is August basically. So when you're targeting for fall, you should have everything ready by September before that August. So if you are right now it's 2020, if you're planning for 2021, you should have been done by 2020 October. Yeah. And October end तक तो बहुत सारी universities की deadline होती है, especially अच्छी universities की. Okay. How much score is good in GRE and TOEFL? I mean, good score में जितना दिखा कि अच्छे कॉलेज से मिल जाएंगे अब. मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैं कितना स्कोर ले आना चाहिए, उस कॉलेज के लिए कितना स्कोर चाहिए उसका. सी द होल पॉइंट इज, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लेट्स से 300 इज द गुड स्कोर, क्या You just target 100. क्या आप 300 ला के रुक जाएंगे, लाइक पेपर लिख रहे कि हाँ 300 तो इतने में हो जाएंगे, उससे ज़्यादा पेपर में सॉल्व नहीं करूंगा. इज दैट हाउ इट्स गोना बी? नहीं. And I think फिर मोटिवेशन भी उतना रहेगा कि हाँ ये इसमें 300 में हो जाएगा ना, एक दो ली भी आए तो ठीक है, या इतने वर्ड छूट भी गए तो ठीक है, 300 पाई जाएंगे. Just target for the most, like for full. Just target for फिर जो आ full जाए वो आ जाए. and हाँ, that's it. Then you can shortlist universities accordingly. But on the average, I think anything above 310 is a Yeah. good score. Okay. And TOEFL? अब कुछ था ना कि अब बाल्टी भर की प्रिपरेशन करोगे तो मक्के वाला स्कोर आएगा. But yeah, मतलब हुआ टारगेट करो. And TOEFL के लिए at least 105 और जो हाँ तो और TOEFL का good score? TOEFL a good score would be anything above 100 is a good score. ठीक है. TOEFL कब देनी चाहिए? GRE तो दे दी अक्टूबर में. GRE के अगले दिन जितनी जल्दी हो सके. I think क्योंकि इंग्लिश भी रिसेंट अभी एग्जाम दिए, इतना पढ़ रहे थे, तो डोंट गिव योरसेल्फ दैट ब्रेक कि वर्ड्स भूलने लग जाओ. जितना कंटिन्यूस में दे दो अच्छा है. लाइक मे बी टेक अ 2 day or 3 day का गैप एंड जस्ट गिव इट. मैं बोल रहा हूँ GRE दो, अगले 2 ब्लॉक में TOEFL करवाओ स्केड्यूल, और जाके सब GRE ज्यादा एक उठाओ और दिन एक दिन में खत्म करो, एक दिन में फ्री. पार्टी फिर. एंड सो जो एक मेरा क्वेश्चन है कि एग्जाम आप अक्टूबर में देते हैं, स्कोर आता है कि एक हफ्ता हो जाता है GRE का. तो ट्रू. सो कभी कभी अर्ली एप्लीकेशन होता है जनवरी में, लेकिन कुछ लोग बाद में देते हैं वो, तो उनको अर्ली एप्लीकेशन मतलब जल्दी एग्जाम देना चाहिए ताकि वो अर्ली एप्लीकेशन में अपना स्कोर दे सके. एक अर्ली एप्लीकेशन होता है और एक बाद में होता है ना, एक जो नॉर्मल वाला. राइट. तो अर्ली एप्लीकेशन में करना चाहिए कि बाद में नॉर्मल वाले में करना चाहिए? कुछ फर्क पड़ता है? डेफिनेटली अर्ली एप्लीकेशन. डेफिनेटली अर्ली एप्लीकेशन, बिकॉज अर्ली एप्लीकेशन में फिर कुछ सीट चली जाएगी. तो अगर 10 है, अगर 5 ऑलरेडी चली गई, तो नाउ from 1000 people सिर्फ 5 सीट बची, तो your chances get less, your probability gets less. Exactly. So give it early and try to get in early admission. That is always a plus point. और जो लोग रेडी नहीं, जिन्होंने GRE नहीं दी, they are not your competition anymore. Yeah. So you have less competition. Early bird takes the ball. Okay. So next question, अभी लॉकडाउन में कोरोना के इस समय में एग्जाम ऑनलाइन देनी चाहिए कि सेंटर में जाके देनी चाहिए? Good question. इसका जवाब कैसे दिया जाए? I think it's also about your comfort, but then हाँ. again you want to be safe. Safe यहाँ पे अब 2 चीज़ों में, if you want to be safe as in किसी से मिलना नहीं है, सेंटर में नहीं जाना है, घर पे रहना है, तो that is your choice. But कुछ लोगों का safe ये भी होता है that if you don't have proper stable connection, you don't want to take a risk. Internet connection की exam के बीच में, you know, it just kicks you out session के बाहर and all of that. और if you have disturbance या बहुत सारे लोग हैं घरों में, घर उतना बड़ा नहीं है, तो उसके accordingly you need to decide what is comfortable for you and what would be good for you. I think it's better if you go to center क्योंकि they are taking precautions, if I'm not wrong, and you don't need to worry कि अगर Wi-Fi को कुछ हुआ तो they are responsible. Any kind of technical difficulty. So any kind of technical difficulties or laptop में कुछ problem हो, Yeah. system में problem, webcam में कोई problem हो, कुछ भी हो सकता है. yeah, it's not on you, so you are safe. And you can rely on them and you can just focus on giving your exam, right? You don't need to worry about technical things and all. Just go prepared and give it. GRE में you can skip questions, right? Yeah. तो if you just want to go through your strength, सबसे पहले आप वो question solve करें जिसमें आप अच्छे हैं. Just go through the whole exam, just solve the questions you can easily do, and then come back to the difficult questions that you can do. But then GRE में it's a fact, it's like computer adaptive exams. So adaptive ऐसी होती है कि if you are really good at something, they give you more difficult questions and they also reward you more on those questions. जैसे आपने एक simple question किया, आप simple question 5-6 बार फटाफट कर रहे हैं, you are doing right. They will give you 5 marks per question, which is a tough one, and then you can solve that question, and then you can get 5 marks by just one question rather than giving like 5 more
questions and then. And at the getting same the time, marks अगर for वो that. गलत होगा तो you'll again start getting easy questions. Yeah, then you will get. And that is not a good sign. I mean, it depends. I mean, it's gonna increase the difficulty, and then you will be rewarded accordingly. So it's a good type of exam. I think for quantitative, मतलब solve the questions that you can easily do, and then जो नहीं समझ में आया just skip it, and then come back to it later. Otherwise, जय माता दी. So next question है things to do one day before exam. First thing, don't panic. I would say जो छूट गया वो छूट गया. ये टॉपिक नहीं आता अभी भी, ये नहीं आता अभी, वो नहीं आता. You're done. तुम्हारा हो गया. पहले पढ़ना चाहिए था. अब पैनिक होने से मतलब नहीं है. Just try to maybe revise words once if you want. एक बार revise कर लो topics और या फिर questions भी एक बार कोई भी टेस्ट के वापस कर लो and उन्हीं को revise कर लो topic को. But हल्का फुल्का revision is fine. And yeah, अभी एक दिन में कुछ नहीं होगा. तो ऐसा मत करो कि बहुत ही कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन एक दिन पहले उठा रहे हैं देन, क्योंकि अगर वो नहीं सॉल्व हुआ तो मॉरल या फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, विच इज अगेन नॉट गुड. तो जो आता है उस पे स्टिक करके रिवाइज इट एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट. इसमें मुझे लगता है 3 तरह के लोग होते हैं और मैं थर्ड टाइप का हूँ. फर्स्ट वो लोग होते हैं जो बिल्कुल जितना कर सकते हो उतना कंप्लीट करके रहेंगे, जो आखिरी दिन बचा है फुल यूटिलाइज करो टाइम एक को, घंटे पहले तक जो और सीख सकते हो सीखो, मतलब रात को 3-3 बजे तक 4-4 लास्ट बजे तक. मोमेंट तक. हाँ बिल्कुल, जो जितना पढ़ सकते हो सो दैट कभी एग्जाम में आ जाए तो यूजफुल हो जाए. दूसरे वो होते हैं जो ईशा ने भी मेंशन किया कि थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो, थोड़ा हल्का फुल्का एंड चल. तीसरे वे तरह के होते हैं कुछ नहीं. कि कुछ मत करो, बढ़िया नींद लो, सो जाओ. क्योंकि फॉर मी माय माइंड डजंट वर्क अगर मुझे 8 घंटे की स्लीप नहीं मिलती तो. सो आई वांट कि हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहे. एंड आई थिंक मैंने सेकंड सजेस्ट किया बट मैं फर्स्ट कैटेगरी में आती हूँ. इसीलिए मैंने वो सजेस्ट किया कि ऐसा मत करो बिकॉज मैं फर्स्ट कैटेगरी वाली हूँ. आई पैनिक एंड आई ट्राई टू स्टडी एंड लास्ट मोमेंट तक मैं सोती हूँ जिस दिन नेक्स्ट डे मेरी एग्जाम होती है, मेरी पूरी रात ऐसी जाती है. Don't do that, but it's not good. It's not healthy. तीनों में से नहीं, तीनों में से whatever suits you the best, जो आपको अच्छा लगे just do that. Yeah. But हाँ, but still नींद तो at least you need. तो ऐसा भी मतलब ना 1 घंटे पहले तक पढ़े रहे फिर एग्जाम में नींद आ रही है. तो कुछ लोगों को नींद भी नहीं आती ना फिर. हमें तो नहीं आती. But at least try to give your eyes like थोड़ा time and. Okay. So that's it for today. एंड बस एग्जाम जाने से पहले मेरी एडवाइस रहेगी कि बस माँ का आशीर्वाद लेके जाना और दही शक्कर खा के जाना. सब अच्छा होगा. Just be prepared. Give it and yeah. Drop if you have any more questions, just drop it in the comment section below. We'll make another video for you. और जिनकी एग्जाम है वो एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप थोड़े से पहले देखें, उनको बेस्ट ऑफ लक. Good luck. हमारा आशीर्वाद लेके जाना. श्रीथा बोलो जय श्री महाकाल. जय श्री माता. So see you guys in the next video. So जो second part होगा वो बताएंगे आपको. यहाँ पे एग्जाम Wake up. Signing off. Spot दादा. ठीक Spot like नारियल पानी. मेकअप बिगड़ गया उनका थोड़ा इनके आईब्रोज निकल रहे हैं इनके नकली. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इनसे पूछ सकते हैं. इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का एंड इनके चैनल का भी लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक दोनों का रहेगा. और इनका खुद का चैनल है स्टडी अब्रॉड करके, नेचुरोलॉजी है. ये भी वीडियोस बनाते हैं बहुत अच्छा. I'll see you guys in the next video. Bye bye, take care. मेरा नेक्स्ट शूट है. बाय. So I'll see you guys in the next video. Bye bye, take care. Namaskar. Jai Hind.